آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتا ہے۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتے ہیں۔ سارے ائمہ کا فتویٰ یزید کافر فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤں کن کن سے حسینی حسینی حسین۔ ہلو، ہاں آپ کا نظر مطالعہ کر کے آئے کیا؟ مطالعہ کر کے منہ صاف وغیرہ کر کے آیا ہوں تاکہ حدیث اور قرآن پڑھ کے سنا دوں آپ کو اور آپ راہ راست میں آ جاؤ، ہے نا؟ اصغر دیوبندی صاحب، جو اعتراض آپ لوگوں پر وارد ہے، جو کہہ رہے تھے آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے کے قابل ہے ہی وہ عبارت جو تحذیر الناس۔ جی ہلو ہلو ہلو، ایک منٹ میری بات سنیے دونوں حضرات۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا مدلل گفتگو کریں۔ میرا نام جو ہے انس رضا قادری ہے، اور یہ جو ہے نا یہ حافظ اصغر جو دیوبندی ہے، یہ مجھ سے جو ہے نا فون کر کے بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں کہا کہ میں اپنے عالم سے بات کراؤں گا۔ آپ انس رضا قادری بول رہے ہیں؟ جی 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 جی۔ تو آپ اہل سنت و جی ہاں جی حضرت، آپ میری بات سنیے نا۔ جی جی، یہ اصغر دیوبندی جو ہے یہ مجھ سے جو ہے نا یہ جو اعتراض اس نے ابھی آپ کے پاس پیش کیا تھا، اور پھر آپ نے فون کاٹا تو کہا دیکھا تمہارا مناظر بھاگ گیا۔ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، حضرت کہیں مصروف رہے ہوں گے اس لیے کیا کہتے ہیں فون کاٹ دیے۔ نہیں پان کھانے میں تھا۔ ہاں وہ میں سمجھ گیا حضرت کہ آپ کہیں مصروف تھے، کان کھا رہے تھے۔ میری تو ایک مصروفیت ہی ہے نا حضرت، جب تک کم سے کم 5 روپے کا پان ہے، جب تک اس کو سوکھیں گے نہیں پیسہ بیکار جائے گا۔ تو حضرت میں یہ چاہ رہا تھا یہ جو اصغر دیوبندی ہے یہ مجھے کئی دنوں سے فون لگا رہا ہے اور یہی اعتراض پیش کر رہا ہے۔ میں کہا کہ بھائی دیکھو مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں، اگر تمہارے اندر ضرورت ہے تو میں آپ کا نمبر واٹس ایپ گروپ سے لیا ہوں، تو میں اس عبارت کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو جو ہمارے علماء کی طرف سے اعتراض ہے دیوبندیوں کے اوپر، حضرت میں چاہتا ہوں اس پر اچھے سے گفتگو ہو جائے، بحث بازی نہ ہو، آپ یہ اپنا آپ اعتراض پیش کریں، یہ اس کا جواب دیں۔ ایک طرف سے ایک آدمی بولے، جب ایک آدمی کے بعد مکمل ہو جائے پھر دوسرا آدمی بولے۔ دیکھیے اصغر دیوبندی صاحب، سن رہے ہیں میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تحذیر الناس یہ کتاب ہے جن کو یہ دیوبندی بانی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا مولوی قاسم نانوتوی جی، اس کے صفحہ نمبر 5 پر وہ لکھتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، مساوی مانے برابری ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاف طور پر مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا صاف کہنا ہے کہ علوم ہی میں زیادہ جانتے ہیں وہ۔ پہلے تو یہ اقرار کر لیے اور لکھ لیے، لیکن دوسرا ان کے مولوی براہین قاطعہ صفحہ نمبر 47 میں لکھتے ہیں، خلیل احمد امرتوی جی، شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ جی مسئلہ الگ نہیں ہے، علم ہی کی بات چل رہی ہے۔ یہ بار بار پڑھ رہے ہو، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، عمل میں امت کی بظاہر۔ دیکھیے جناب، آپ دھوکہ مت دیجیے، براہین قاطعہ میں بھی صاف طور پر علم کی بات کہتے ہیں، اور علم حضرت میری بات سنیے حضرت جی حضرت دیوبندی آپ خاموش رہیے ابھی۔ حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عبارت پر پہلے بات ہو، آپ جو ہے نا یہ عبارت ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ ان کے دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ امتی بظاہر انبیاء سے علوم میں بڑھ جاتے ہیں، مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، اس میں لکھا۔ اور یہاں پر براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت سے جی حضرت وہ بھی حضرت سنیے نا ایک بات، میں کیا کہہ رہا ہوں
क्यों कहता था पहली बात? ये इस इबारत का जवाब पहले अपना देवबंदी दे दें, जो मुझसे बार बार फोन करके। नहीं, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम। बराहीन कातिया 47 में और तहजीरुन नास 5 सफ़ा में दोनों ही सेम इबारत इल्म ही की बात कर रहे हैं, और उसमें बराहीन कातिया में शैतान और मलिकुल मौत से ज्यादा साबित किए हैं इल्म को। हजरत ऐसा क्या होगा ना कि मतलब एक भी इबारत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि एक एक इबारत पर बात हो। तो जो यहाँ पे इनके देवबंदी अकाबिर ने लड़ा है, सुनेंगे जी, एक मिनट मेरे मसले जो बराहीन कातिया का बोल रहे हैं आप सुनाइए, वो जमीन इल्म मुहीत है, वो जी जमीन इल्म मुहीत है। आप इबारत पढ़िए उसको, बराहीन कातिया का। हाँ क्या है आप पढ़ो, आप बराहीन कातिया की इबारत पढ़ें जनाब। क्या है आप बताओ ना तुम। देखो मैंने देखिए लिखा है इबारत में, ये हाथ में उठा लिया हूँ किताब बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 47, असगर देवबंदी, असगर देवबंदी बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 47 में लिखी हुई बात यह है, जो आपको पढ़ने के लिए बोला तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। शैतान व मलिकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फखरे आलम, देखिए जमीन का, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पूरी इबारत, सुन लीजिए पूरी इबारत, सुन लीजिए पूरी इबारत, सुन लीजिए। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफे नुसूस, वो इल्म जमीन मुहीत है, वो इल्म ही की बात है, वो यहाँ अमल में बढ़ने की बात है, अमल और इल्म दो। देखिए जनाब असगर देवबंदी, इसमें अमल और इल्म दोनों शुमार किए हैं तहजीरुन नास में, ठीक। अरे और अच्छा आप दोनों लोग खामोश रहिए 2 मिनट के लिए। इस पर आप बहस करेंगे तो मैंने क्या समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि असगर देवबंदी साहब सुनिए, हमारे मुनाजिर ने अपना इतराज पेश कर दिया कि आपके अकाबिर ने लिखा है कि उम्मती जो है अमल में बजाहिर मसावी हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, और कभी बढ़ ही जाता है ना। क्या ये आपका अकीदा है? ये आपका अकीदा है? मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारे मुनाजिर आप अक्सर निजामी साहब, हजरत मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि क्या कहते हैं कि उम्मती अमल में बजाहिर अम्बिया से बराबर नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं कि बढ़ नहीं सकता, हमारा ऐसा अकीदा है हजरत? देखिए जनाब इसमें क्या लिखे हैं, उलूम ही में हसर के साथ ये इबारत में तहजीरुन नास में उलूम ही में मुमताज होते हैं, ठीक। उलूम ही में मुमताज होते हैं। एक बात ये रही, और इसमें इल्म मुहीत को फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुसूस कतियात के खिलाफ एक शिर्क साबित किए हैं, अलग नहीं है, इल्म ही की बात है, इसमें भी इल्म ही की बात है। मेरी एक बात सुनो, वह इल्म जमीन मुहीत जो इबारत है, ये तुम लोग जो एतराज करते हो वो इल्म गैब में एतराज करते हो, पेश करते हो, तो ये मौजू है ही नहीं। इल्म गैब नहीं है, ये इल्म की बात है जनाब, आप धोखा ना दे। इल्म गैब की तो बराहीन कातिया में बात ही नहीं हुई है। खामोश करो, अरे खामोश करो, क्या बोल रहा हूँ, बोलने तो यार। अब बोलिए वही सुन रहा हूँ, बोलिए। पीछे क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे बात चल रही है इल्म में, तो मुमताज है, इल्म का सवाल ही नहीं है। यहाँ बात चल रही है अब बज़ाहिर उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाना, अब बज़ाहिर अमल में। अच्छा कैसे बढ़ जाएगा ये बताइए आप। हाँ ठीक है अफजल देवबंदी साहब, ये हमारे हजरत का या हमारे अहले सुन्नत का ये इतराज आपके अकाबिर पर है कि उन्होंने जो लिखा है कि उम्मती बज़ाहिर अमल में बढ़ जाएगा या बराबर हो जाएगा, ये क्या दुरुस्त लिखा है या आप साबित कर सकते हैं कैसे बढ़ जाएगा? हाँ ठीक है। हमारे हजरत का जो है ना इतराज मुकम्मल हो गया, उन्होंने आपके सामने इबारत भी पढ़ के सुना दी। आप क्या कहते हैं कि अपने अकाबिर का विचार कीजिए और उसका जवाब दीजिएगा कि उम्मती जो है अमल में बराबर कैसे हो जाएगा या कैसे बढ़ जाएगा। बस मुझे यही समझना है आपसे। बज़ाहिर मतलब नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी में कितने हज किए? एक हज किए। आजकल के बहुत सारी उम्मतें ऐसी हैं 10-12 हज किए कि नहीं किए? हाँ किए हैं। तो बज़ाहिर अमल में बढ़ेगी नहीं? असगर देवबंदी इसमें धोखा देने की बात नहीं है। हज में जैसे आप कह रहे हैं कि उम्मती, असगर देवबंदी साहब आप ये कह रहे हैं कि उम्मती आज एक हज किया है,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا اور امتی ایسے بہت سے امتی ہیں جنہوں نے 10 حج کیے ہیں، تو حج میں اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب امتی بڑھ گیا ہے نا؟ لیکن اچھا لیکن کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 حج کا مقابلہ تمام دیوبندی جتنے ہیں جو 10 حج کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 حج کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا؟ وہاں ثواب کے مقابلہ نہیں کر سکتے جی، ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن گنتی کے اعتبار سے بظاہر میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ایک حوالہ لیں آپ. ایک منٹ، یہاں پہ جو آپ کے عالم نے کتاب میں لکھا ہے کہ امتی بظاہر جو ہے عمل میں بڑھ سکتا ہے، مطلب یہاں سے تعداد مراد ہے، عدد مراد ہے، ثواب نہیں، اخلاص نہیں. اچھا تعداد مراد ہے. اچھا اور ایک حوالہ لے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں آپ کو. میں ایک حوالہ آپ لیں، ایک حوالہ ہے جال حق ہے. اگر بظاہر کے اعتبار سے اگر گستاخی ثابت ہوگی تو جال حق کے اندر صفحہ نمبر 169 کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نوری کمشکاتین وغیرہ آیت ہے جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے. تو قرآن کی آیت بظاہر اللہ کی شان کے خلاف معلوم ہو، اگر قرآن کی آیت کی شان کے خلاف معلوم ہو جاوے تو پھر تو قرآن ہی کہا رہا. اگر بظاہر امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاوے، اگر بظاہر لفظ کو اگر بالائے طاق رکھ کر کے اس کو گستاخ ثابت کی جائے گی تو یہاں احمد یار خان نعیمی نے کہا بظاہر خدا یہ آیت شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے. تو پھر قرآن کہاں رہا، اسلام کہاں رہا؟ اللہ اور نبی کو مانیں گے کس طرح؟ یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تعداد میں، جیسے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ 63 سال تک جو ہے مطلب باحیات رہے، 63 سال کی عمر میں آپ کو وفات مبارک ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے 23 سال مثلا پڑھی آپ نے، اور امتی آج 70 سال جیتا ہے تو 70 سال نماز پڑھتا ہے، تو نماز کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ گئی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں تعداد جو ہے تعداد میں لیکن ثواب ہے، اخلاص ہے، لجاجت ہے، اس کو کون نبی علیہ السلام کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا جی حضرت اختر نظامی صاحب. جی جناب سنیے اصغر دیوبندی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میری بات سنیے، یہ جو جواب دے رہے ہیں کہ امتی بظاہر عمل میں تعداد کے حساب سے کیا قابل ملتا ہے دیوبندیوں نے، کہ جیسے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 حج کیے ہیں تو آج کل کے امتی جو ہے چاہے دیوبندی ہو چاہے سنت سے بریلوی ہو وہ کئی حج کیے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ تعداد میں یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے معاملے میں یا نماز کے مسئلے پر یا عمرہ کرنے کے معاملے میں یہ امتی جو ہے مطلب ان کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ تو یہ ہے مطلب یہ جواب صحیح ہے، وہ تعداد زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج جو امتی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جس کی عمر زیادہ ہے تو تعداد تو اس کی بڑھے گی. پھر اگر تعداد کی بات ہے تو اگر دیوبندی عالم نے تعداد کی بات لکھی ہے تو تعداد اس سے بڑھے گی، یہ تو ظاہر سی بات ہے. آپ خاموش رہیں جناب، آپ خاموش رہیں، آپ زیادہ بات نہیں کریں. آپ تحذیر الناس میں جو عبارتیں لکھی گئی ہیں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، ٹھیک، علوم کو حاصر کیے ہیں. آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. اصغر دیوبندی آپ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، اور یہ اس میں عمل کی کیا بات ہے، اس میں درجے الثواب کی بات ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا غیر صحابی کا عمل اور صحابی کا عمل کے برابر ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک کتاب ہے اتمام حجت، ایک کتاب ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الوہاب خان قادری صاحب. یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک شہر پر عذاب بھیجا، اس میں 18,000 شخص ایسے عابد تھے کہ عمل ان کے مانند پیغمبر کے تھے. کیا 18,000 عابد ایسے تھے جن کا عمل پیغمبروں کے مانند تھے؟ آپ بتائیں
तो सवाल मुझसे पूछ रहे हो क्या किसी उम्मत की अमल नबी अलैहिस्सलाम के मानिंद हो सकता है, बराबर हो सकता है? बराबरी वहाँ पर मानिंद एक मिसाल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तहज़ीरुन नास में लिखे हैं, मुमताज़ ही में हसर के साथ कहे हैं, ये उलूम ही में मुमताज़ होते हैं। बाकी रहा अमल, यानी अमल के बात कर रहे हैं, तो बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं। यहाँ अमल से क्या मुराद है, इसका पहले खुलासा करना चाहिए। मेरे बात समझ में आ जाए जरा। अमल से क्या मुराद है, मतलब यहाँ अमल से क्या मुराद लिया देवबंदी मौलवी ने, तो बात समझने में आता है। एक तो उलूम ही में मुमताज होते हैं कहकर हसर किए हैं, और दूसरी बात अमल माने जिसे रोजा, नमाज, हज, ज़कात जितने भी हो सकते हैं, जितने नेकी अमल, तो बसा औकात बराबरी होते हैं, उससे बढ़ जाते हैं भी बोल रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि आदत के हिसाब से वहाँ लिए हैं, लेकिन सहाबा कराम का बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3673, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3861, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4658, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा। इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर, अभी बीच में ना बोले आप, मैं खामोश रहिए, आपकी जितने मतानत और इत्मीनान से सुना। अब हवाला सुनो, आप गौर से मातम करो, अपनी देवबंदी पर लानत भेजना भी। हदीस और कुरान के तुम लोग बिल्कुल खिलाफ हो। और तहज़ीरुन नास में सुनो, अब मैं आपकी हर एक बात सुना हूँ और हदीस की इबारत में पढ़ के सुनाऊंगा भी, और इतना जूता मारूंगा देवबंदी पे के उसके होश ठिकाने हो जाएंगे। और रही तुम्हारी औकात के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल में, सुनो गौर से सुनो जनाब, आपने कहा है उलूम ही में मुमताज होते हैं। हजरत मेरी बात सुने ना हजरत जी, मैं इसी बात को समझना चाहता हूँ। ये जो देवबंदी मौलवी अफजल रजा है, ये मुझे हफ्तों से परेशान कर रहा था। सुनो आप गौर से सुनिए, हदीस के खिलाफ है ये लोग। हजरत मेरी बात सुनिए ना। जी जी, अफजल देवबंदी तुम खामोश रहोगे, अभी मैं अपने हजरत से बात कर रहा हूँ, अभी तुम खामोश रहोगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हजरत, जैसे आपके मैंने पूछा आपसे कि यहाँ अमल से मुराद क्या लिया गया है, तो आपने हजरत कहा कि अमल कुछ अब नमाज रोजा दिया गया है जी। तो नमाज रोजा में हजरत, तो अभी हम देखने जाए तो हमारे मुशाहिदे में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हज किए हैं, तो क्या कहते हैं। अरे यार देखिए जनाब, आदत के हिसाब से मर जाएगा, सर फोड़ कर भी तो नहीं पहुंच पाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले उनका नूर बनाया गया और हजारों साल इबादत करते रहे। और अभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया हज के लिए आज जाते हैं, हमेशा के लिए जाते हैं। कोई उम्मती मर जाएगा लेकिन नहीं पहुंच सकता, हदीस में भी मौजूद है। इनका हवाला हदीस के खिलाफ है ये लोग। आदत में भी नहीं पहुंच सकता है, न दर्जे में पहुंच सकता है, किसी में भी नहीं पहुंच सकता। जनाब आप खामोश रहे, असगर देवबंदी तुम लोग हदीस के खिलाफ हो। सुनो, इसलिए कि अंबियाए कराम हर एक साल हज करते हैं, समझे, हर एक साल हज करते हैं, और हमारा अकीदा सीना ठोक के कहते हैं जितना अंबिया हैं जिंदा हैं और कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे। लेकिन हम लोगों की उम्र 60 साल है, 80 साल है। बताओ, अपनी उम्मती अगर नबी के बारे में दर्जा में, अमल में, अदद गिनती के एतबार से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। क्या तुम मुर्दा समझते हो नबी को? क्या मुर्दा समझते हो नबी को? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, नबी को मुर्दा समझते हैं आप? अब मैं बोलूं ना? हाँ बोलिए, आप इसका जवाब दीजिए। नबी को, अंबियाई कराम को मुर्दा समझते हैं या जिंदा समझते हो? अरे यार बोले यार, अंबिया को मुर्दा समझते हो या जिंदा समझते हो? नबी का फरमान है नमाज पढ़ते हैं, अपनी कब्र में भी नमाज पढ़ते हैं। नबी का फरमान है हर एक साल हज करते हैं। तो तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे मौलवी मुल्ला लिखा है तहज़ीरुन नास में, अमल में बज़ाहिर बराबरी हो जाते हैं, मसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हदीस के खिलाफ है ये जनाब। आप बयान कीजिए असगर देवबंदी, बताइए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलो। हाँ, हवाला लिखा है, बात है कि उनकी बज़ाहिर अमल में नबी से बढ़ जाते हैं। एक बज़ाहिर लफ्ज़ पर अगर तुम ये इस्तेराज करोगे तो मैंने एक हवाला पेश किया बज़ाहिर। अरे यार खामोश जो हमारे हजरत ने जो आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। मेरे जवाब दीजिए बस। हदीस में ऐसा है, तुम लोग हदीस के खिलाफ हो। खामोश। तो यहाँ पे लिखा है कि इससे मालूम हुआ
जिस तरह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम या मसल नूरी कमिस्कात वगैरह आयत जो बज़ाहिर शान खुदाबंदी के खिलाफ मालूम होती है, तो क्या ये आयत बज़ाहिर शान खुदाबंदी के खिलाफ है? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम मसल नूरी कमिस्कात, ये वाला ये आयत जो है, आयत मुतशाबिहात में क्यों पढ़ते हो? तुम्हारे अकीदा ईमान क्या मुशाबिहात है? आयत मुतशाबिहात से अकीदे नहीं बनाए जाते हैं देवबंदी, असगर देवबंदी, और ये धोखा देने की कोशिश ना करो। मैं कहाँ बोल रहा अकीदा है, मैं कहाँ बोल रहा, मैंने बोला? हाँ, तो आयत मुतशाबिहात क्यों पेश कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो उसको तुम? अरे कुरान की आयत नहीं है, कुरान की आयत है, तो आयत मुतशाबिहात को आपने फीट कर रहे हो इसमें ला करके, शर्म आती है। अरे मेरी बात सुनो, कुरान की आयत क्या खुदावंदी के खिलाफ है? बताओ, क्या ये आयत शान खुदावंदी के खिलाफ है? शान खुदावंदी के खिलाफ है। वो तो अल्लाह और उसके रसूल उसके मुराद जानते हैं। जो आयतें मुतशाबिहात हैं, तुमको जो नहीं मालूम है, भाग रहे हो तुम, भागोगे अभी, देखना, आप फोन काट के भागना नहीं। बातें न करो, है ये आयत बज़ाहिर शान खुदाबंदी के खिलाफ मालूम होती है। क्या तुम्हारा भी अकीदा वही है कि ये आयत जो है कुरान की कोई भी आयत, फिर भी आयत तो कोई ये जो असगर देवबंदी जो पेश कर रहे हो बज़ाहिर शान खुदाबंदी के खिलाफ और मालूम हो रही है, कौन सी किताब के हवाले से पढ़ रहे हैं जनाब आप? जाल हक। हाँ जी 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 जी। तो जाल में बात लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम या मसल नूरी कमिस्कात वगैरह आयत जो बज़ाहिर शान खुदाबंदी के खिलाफ मालूम होती है। तो मेरा सवाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के सूरह नास तक, अलिफ लाम से नास तक, कोई एक भी आयत अल्लाह के शान के खिलाफ है कि ऐन शान के मुताबिक है? हाँ, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत जो आयत मुतशाबिहात है ना, तो बज़ाहिर जिसे मालूम होते हैं कि खिलाफ लग रहे हैं, लेकिन वो आयत मुतशाबिहात का मुद्दा और मकसद कुछ और होते हैं, समझे? लेकिन बज़ाहिर वो मुशाबिहात है, इसलिए मुशाबिहात में पढ़ने के लिए मुफस्सिरीन से लेकर के मुहद्दिसीन तक उसमें ममानियत करार दिए हैं, इसमें पढ़ो नहीं, समझे? अब जैसे अल्लाह की पिंडली के बारे में हो गया, समझे? मना नहीं है, लेकिन उससे अकीदे नहीं बनाए जाते हैं असगर देवबंदी, उससे अकीदे नहीं बनाए जाते हैं। अब रही बात बज़ाहिर, वो समझे, बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर देखने में तो लग रहा है कि ऐसा है, समझे? क्या है, कैसा है, कैसा है? लग रहा है कि अल्लाह का हाथ साबित हो रहा है उससे, लग रहा है कि अल्लाह का पिंडली साबित हो रहा है उससे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो आयतें मुतशाबिहात उससे अकीदे नहीं बनाए जाते। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात को गोल मोड़ कर पेश मत कर, गोल मोड़ नहीं, साफ तौर पर मैं पेश किया, लेकिन तुम लोगों का अकीदा यहाँ पर साफ लिखा है, बाकी रहा अमल, ठीक? इल्म को किनारे रख दिए, उलूम में मुमताज होते हैं, ठीक, मान लिया है उसको, लेकिन बाकी रहा अमल, इसमें बसा औकात उम्मती मसावी हो जाते हैं, बराबरी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुने यार, तुम वहाँ से भाग गए। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है कि ये आयत शान खुदाबंदी के खिलाफ मालूम होती है, कि कुरान की किसी आयत के मुताबिक ये अकीदा रखना कि ये अल्लाह के शान के खिलाफ है, क्या इसका ईमान हो सकता है? वो अस्तगफिरुल्लाह, जालहक में कुछ और लिखे हुए हैं, देखिए सुनिए, कुरान आयत जो है ना असगर देवबंदी, आप दोनों आजाद खामोश रहिए। मेरे पास एक कुछ कहने के लिए इबारत आ रही है, जो एक है फतावा फैजुर रसूल जी, ये इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे इबारत समझना है। मैं पढ़ रहा हूँ। और खिज़र अलैहिस्सलाम, सुनिए, और खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या गैर नबी, गैर सूरत बाद उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम पर नबूवत महसूस नहीं और उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। ये हज़रत आखिरी किताब में भी लिखा हुआ है। देखिए जनाब, वो चीज़ है ना, जो नबूवत के लिए उलूम जरूरी नहीं है, जो नबूवत से ताल्लुक नहीं है, तो उसमें उसका बात ही छोड़ दीजिए, उसके कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन इसमें तहजीरुन नास में साफ लिखा हुआ है मुतलक तौर पर अमल में बसा औकात। मुमताज तो होते हैं, उलूम की बात छोड़ दीजिए, इसमें रही बात अमल में, तो अमल में बराबरी कैसे और बढ़ने की बात कैसे नबी से? हाँ आप मैं ये कह रहा था नहीं, आप खामोश रहे जनाब, आप खामोश रहे, असगर देवबंदी बात कीजिए। हमें पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पे लिखा है बज़ाहिर उम्मती अमल में बसा औकात मसावी बढ़ जाता है। आपकी इबारत भी पढ़ने नहीं आ रहा है जी, पढ़े, देख करके पढ़ो ना। हाँ देख भाई, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, किताब देख के पढ़ो यार, अपनी अकाबिरीन की इबारत भी सही से नहीं पढ़ते हो। देख के पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, तो इसका मसला खत्म हो गया। हाँ, इसको छेड़ो मत, उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, चलिए। अमल बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती, बज़ाहिर जाहिरन, ठीक है, जाहिर एतबार से, यानी मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम अपने हयात तैयबा में कितने एक हज किए, वफात से पहले, इंतकाल से पहले, विसाल से पहले, तो उम्मती विसाल से पहले कितना हज करता है, कोई 10 करता है। देखिए असगर देवबंदी, अपने तरफ से तावीलात पेश मत करो, आप तो देवबंदी हो, देवबंदी के जैसा बात करो, समझे? असगर देवबंदी साहब 1 मिनट खामोश रहे, लेकिन अपने हजरत से कुछ बातें समझ लेने दीजिए, ठीक है जी। हजरत क्या कहते हैं कि देखिए, ये क्या कहते हैं तफसीर नईमी है, आलम क्या कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। नहीं, आप हवाला मत पेश कीजिए, आप सिर्फ बात कीजिए, पूछिए कुछ जो चीज। ये हवाला अजगर देवबंदी ने मुझे 2 दिन पहले भेजा था और मुझे समझा रहा था कि देखो तुम्हारी किताब में भी वही लिखा हुआ है, तो हजरत इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसको अजगर देवबंदी का जवाब दें। इसमें क्या लिखा हुआ है? चौथे ये कि नबूवत अमाल से नहीं हासिल होती बल्कि महज रफ्त फजल से, वरना शैतान या किसी फरिश्ते को मिलनी चाहिए थी। यहाँ हज़रत देवबंदी साहब ये मुझसे कह रहे थे कि अमल से अगर नबूवत मिलती तो शैतान को मिलती, मतलब वो ये कह रहे थे कि इस किताब में शैतान के अमल को नबी से ज्यादा माना गया। लाहौल वला कुव्वत, तो वो गलत फहमी है इनकी, तो अमल के जरिए से कोई नबी नहीं बनता, वो उसका रद्द किए गए हैं। उसमें साफ तौर पर लिखी हुई है कोई इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए अगर नबी बनता अपनी कोशिश के जरिए से, तो शैतान अज़ाज़ील जो था वो नबी बन जाता। इतने अमल किए हैं, लेकिन अमल के पर्दे से, अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नबूवत नहीं देता, बल्कि अल्लाह का फैज़ होता है, वो अल्लाह का फजल होता है, समझे? अब इसमें तहजीरुन नास में बसा औकात लिखे हैं, बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं। ये हदीस और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। 1-2 हदीस नहीं, मैं तो अभी लादना शुरू कर दूंगा इसमें, देखिएगा अभी। नहीं, फोन बराए मेहरबानी काटना नहीं, मुकम्मल हदीस का हवाला सुन के जाओ और देवबंदी को लात मारना तौबा करना।